हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन क्लास 6। टॉपिक चल रहा है अपना अंडरस्टैंडिंग एलीमेंटरी शेप्स। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 11.6। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਬੇਸਿਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਕਾਈਟ, ਰੋਮਬਸ, ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 11.6 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਟੇਬਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਗਿਵਨ है, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਡਸ, ਐਂਗਲ, ਡਾਇਗਨਲ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ इधर साइड ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸਾਈਡਸ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ opposite, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ all, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एंगल्स ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ। एंगल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? opposite, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ all, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ adjacent। adjacent ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਡਾਇਗਨਲ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਡਾਇਗਨਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਰੋਮਬਸ। ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਮਬਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੁਆਇਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਈਸੋਸਕੇਲਸ। ਆਈਸੋਸਕੇਲਸ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਟੇਬਲ ਕਰਨਾ। ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਾਈਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਓਪੋजिट ਸਾਈਡ, ਆਲ ਸਾਈਡ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਗਲ ਆ ਗਏ। ਐਂਗਲ ਕੀ ਆਉਣਗੇ? ਓਪੋजिट ਐਂਗਲ ਤੇ ਆਲ ਐਂਗਲ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਸੋ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ A, B, C ਐਂਡ D। ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? opposite ਸਾਈਡ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? AB ਇਕੁਅਲ ਟੂ CD ਐਂਡ AD ਇਕੁਅਲ ਟੂ BC। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਸੀ? opposite ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਈਡਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਡਾਇਗਨਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? opposite ਐਂਗਲ, opposite ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ opposite ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। all sides are not equal। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਸੀ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ? opposite sides are equal and parallel। ਓਕੇ, ਇਹਦੀ opposite sides ਆ ਗਈਆਂ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਪੈਰਲਲ। ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ opposite sides are equal। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਗਲਸ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ? opposite angle are also equal। ਸੋ ਐਂਗਲ C ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ A, ਐਂਗਲ B ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ D। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ? opposite angles are equal। ਓਕੇ, opposite angles are ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਕੁਅਲ। all ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਸੀ? ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ, ਮਤਲਬ ਕੋ ਇੰਟੀਰੀਅਰ। ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਐਂਗਲ A plus B ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180, ਐਂਗਲ B plus ਐਂਗਲ C 180, ਐਂਗਲ C plus ਐਂਗਲ D 180 ਤੇ ਲਾਸਟ ਐਂਗਲ D plus ਐਂਗਲ A, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਸੀ? 180। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 180, ਜਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂ 180 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਜੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲਿਖਣਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, 180 ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ 180 ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ A ਪਲਸ ਐਂਗਲ B 180, B ਤੇ C 180, C ਤੇ D 180, D ਤੇ A 180। ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਸਾਈਡ ਕਾਮਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਕਾਮਨ। ਜਿਵੇਂ ਐਂਗਲ A ਤੇ ਐਂਗਲ B ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਕਾਮਨ ਹੈ? AB। ਐਂਗਲ B ਤੇ ਐਂਗਲ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ? BC। ਐਂਗਲ C ਤੇ D ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਾਮਨ ਹੈ? CD। ਐਂਗਲ D ਤੇ ਐਂਗਲ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਾਮਨ ਹੈ?
AD। ओके, मतलब एडजेसेंट एंगल किहड़े हुंदे आ जिन्हां दे विच साइड की हुंदी है कॉमन हुंदी है। ओके, तो आपां पढ़ांगे एडजेसेंट एंगल दा सम कितना हुंदा 180। उस तो बाद आ गई डायगनल दी बारी। डायगनल किहड़े बनदे आ AC एंड BD। आपां ये जरूर पढ़िया सी जिहड़े डायगनल है दे बाइसैक्ट ईच अदर। आपां ये पढ़िया सीगा OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, पर आपां ये चीज़ नहीं पढ़ी AC इक्वल टू BD। ये नहीं हुंदा, अपने कोल हुंदा AC नॉट इक्वल टू BD। AC ते BD दी लेंथ आपस दे विच इक्वल नहीं हुंदी, तां आपां लिखांगे दे आर नॉट इक्वल। ओके, दे आर नॉट इक्वल। ओके, इस तरह आप लिखांगे दे आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। डायगनल आपस दे विच इक्वल नहीं हुंदे। तो बेटा किहड़ी किहड़ी प्रॉपर्टी आपां डिस्कस करनी है। पैरेललोग्राम दी ओपोजिट साइडां की हुंदियां इक्वल हुंदियां। ऑल साइड्स नॉट इक्वल, तुसीं इस तरह भी लिख सकते हो इक्वल। ये इक्वल है, इनू क्रॉस करता, इनू की करता आपां इक्वल, इनू आपां करता क्रॉस करता। ऑल एंगल ऑल साइड आपस दे विच इक्वल नहीं हुंदी। एडजेसेंट एंगल दा सम कितना हुंदा 180, मतलब A + B 180, B ते C 180, C ते D 180, D ते A 180, ते लास्ट विच डायगनल आपस दे विच इक्वल नहीं हुंदे। तां इह किहड़े किंदे बारे आपां पढ़िया बेटा पैरेललोग्राम। पहलां आपां पढ़ चुके हैं जिंदा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच है, उत्थों तुसीं इन्हां दे बारे पढ़ सकते हो। तो पहला हो गया पैरेललोग्राम। हुण आपां आउणे रोम्बस दे उपर। बेटा पहला डायग्राम बना लिया करो ताकि तुहानूं सब कुछ क्लीयर हो जाए। ओके, हुण आ गया अपने कोल रोम्बस। रोम्बस की शेप किहड़ी सी अपने कोल, कुछ इस तरह सी अपने कोल। ये अपने कोल किहड़ी शेप सी रोम्बस, A B C एंड D। ये अपने कोल की सी डायगनल। हुण इहदे विच आपां की पढ़िया सीगा, पहली प्रॉपर्टी सी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल एंड ओपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इत्थे की लिखांगे ओपोजिट साइड, इत्थे क्रॉस आ जाएगा, इत्थे की आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। ऑल साइड्स आर इक्वल मतलब AB BC CD DA ये सारे की हुंदे बेटा आपस दे विच इक्वल हुंदे आ। इस बार आपां ओपोजिट साइड ते की कर दांगे क्रॉस, ते ऑल वाले ते की लिख दांगे इक्वल। उस तो बाद इहदे विच आपां की पढ़िया सी, इहदे विच आपां पढ़िया सी ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D। तो इत्थे ओपोजिट दे थल्ले आपां की लिखांगे इक्वल, जिथे ऑल लिखा उत्थे फिर की करांगे आपां क्रॉस करांगे। ओके, इनदे ऑल एंगल आपस दे विच इक्वल नहीं हुंदे, सिर्फ ओपोजिट एंगल की हुंदे आ इक्वल हुंदे। ओके, उस तो बाद आपां पढ़िया सीगा OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD एंड जिहड़ा AC है दैट इज परपेंडिकुलर टू BD। इत्थे किन्ने डिग्री दा एंगल बनदा 90 डिग्री दा। तो डायगनल आपस दे विच इक्वल हुंदे नहीं हुंदे। AC नॉट इक्वल टू BD, तो इत्थे भी आपां की लिखांगे नॉट इक्वल। ओके, एंड एडजेसेंट एंगल, एंगल A प्लस एंगल B, एंगल B प्लस एंगल C, एंगल C प्लस एंगल D, एंगल D प्लस एंगल A, ये सारे किन्ने हुंदे आपस दे विच 180 हुंदे। ते इत्थे आपां रीजन की लिखांगे 180। को इंटीरियर एंगल दा सम कितना हुंदा 180। ओके, तो इत्थे भी की आ गया एडजेसेंट दे थल्ले 180। ओके, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल किहड़े हुंदे आ बेटा जिन्हां दे विच साइड की हुंदी है कॉमन हुंदी है। ओके, तो यह भी कितना हुंदा अपने कोल 180। तो किहड़ी प्रॉपर्टी इहदे विच पहला ऑल साइड्स आर इक्वल, ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री एंड डायगनल्स आर नॉट इक्वल। ओके, डायगनल आपस दे विच इक्वल नहीं हुंदे। ओके, ये अपने कोल की सी बेटा रोम्बस दे बारे। ओके, की आपां पढ़िया ओपोजिट एंगल इक्वल हुंदे आ, सॉरी ऑल साइड की हुंदी है इक्वल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री ते डायगनल आपस दे विच इक्वल नहीं हुंदे। उस तो बाद अगे आ गया बेटा स्क्वायर। स्क्वायर दे बारे हुण आपां थोड़ा पढ़दे। ये की अपने कोल स्क्वायर A B C एंड D। पहली प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर इक्वल, सारियां साइड बेटा की हुंदियां इक्वल हुंदियां। तो जिथे ओपोजिट लिखा उत्थे क्रॉस आ जाएगा, जिथे ऑल लिखा उत्थे की आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड इक्वल हुंदी है ना बेटा इहदे विच। उस तो बाद की पढ़िया सी आपां एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। जिन्ने भी एंगल A B C ते D सारे किन्ने डिग्री दे हुंदे आ बेटा 90 डिग्री। सारे एंगल आपस दे विच की हुंदे आ इक्वल। ओपोजिट वाला आपां की करता क्रॉस करता, ऑल वाला की लिखता आपां इक्वल। वैसे तो आपां ओपोजिट ते भी इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि A इक्वल टू C है, B इक्वल टू D है, तो आपां ओपोजिट ते भी कह सकते हैं इक्वल है। ओपोजिट से भी आप इक्वल कह सकते हैं। याद रखो A 90 है, C भी 90 है,
मतलब ओपोजिट भी इक्वल है ते आ सारे भी आपस दे विच की है बेटा इक्वल है। ओके इत्थे भी आपां इक्वल लिख सकते हैं, याद रखो ए भी 90 है, सी भी 90 है, बी भी 90 है, डी भी 90 है, ओपोजिट भी इक्वल है ते सारे भी आपस दे विच इक्वल है। ओके सारे आपस च कितने डिग्री दे हुंदे बेटा 90 डिग्री दे। ओके पहला आपां की पढ़िया सारियां साइड आपस दे विच इक्वल है, उस तो बाद ओपोजिट एंगल भी इक्वल है ते ऑल एंगल भी इक्वल है, दैट इज 90 डिग्री। ओके पर आपां इत्थे क्रॉस ही रखांगे, क्यों रखांगे क्योंकि आपां ऑल च करता। ओके फिर तुसीं कहोगे सारे भी इक्वल हुंदे आ। ओके तो आपां इहनूं की इक्वल दे विच पाता, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। उस तो बाद की पढ़िया सी आपां जिहड़े एंगल ए प्लस बी 180, एंगल बी प्लस सी 180, एंगल सी प्लस एंगल डी 180, एंगल डी प्लस एंगल ए भी कितना बेटा अपने को 180। दैट मीन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स दैट इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री, मतलब 180। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना हुंदा बेटा 180 हुंदा, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल आपस दे विच हुंदे। उस तो बाद की पढ़िया सी आपां, उस तो बाद आपां पढ़िया सी जिहड़े डायगोनल आपस दे विच 90 डिग्री ते बाइसैक्ट करदे आ, मतलब ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी एंड वन ऑफ द मेन थिंग ए सी इक्वल टू बी डी। जिहड़ा ए सी और बी डी दे की हुंदा इक्वल, मतलब जिहड़े डायगोनल है ना आपस दे विच की हुंदे बेटा इक्वल हुंदे आ। डायगोनल आपस दे विच की हुंदे बेटा इक्वल हुंदे आ। ओके पहला तो डायगोनल आपस च की करदे आ बाइसैक्ट, किन्ने ते करदे आ 90 डिग्री ते। उस तो बाद की हुंदे बेटा डायगोनल आपस दे विच इक्वल भी हुंदे आ, ठीक है। जिथे डायगोनल उत्थे की लिखांगे बेटा आपां इक्वल लिखांगे। ओके पहला ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल, एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री एंड डायगोनल भी की आ गया इक्वल आ गया। ओके नेक्स्ट आ गया अपने को रैक्टेंगल। रैक्टेंगल भी इहदी भैन ही आ, ठीक है। सो रैक्टेंगल के बारे पढ़ते हैं आपां। ये आ गई अपने को रैक्टेंगल ए बी सी एंड डी। मैं डायग्राम क्यों बना रहा ताकि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सका। ओके सीधा भी कर सकता पर दोबारा एक्सप्लेन करांगे तो चंगी तरह लैक्चर किया क्लास की क्लीयर होएगी। ओके सो अपने को पहले आपां की पढ़िया सी ओपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ओपोजिट साइड्स की होंगी बेटा इक्वल ते पैरेलल, मतलब ए बी सी डी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर है। सो आप इत्थे की लिखांगे ओपोजिट साइड की होंगी बेटा इक्वल, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। इस बार ऑल ते क्रॉस लग जाएगा, ओपोजिट ते की लगेगा बेटा इक्वल लगेगा, क्योंकि सारियां ओपोजिट साइड की होंगी बेटा इक्वल होंगी। उस तो बाद ओपोजिट एंगल इक्वल नहीं होंगे, एंगल ए बी सी डी सारे किन्ने होंगे बेटा 90 डिग्री। वैसे तो आप इत्थे भी इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि ए ते सी आपस च 90 है, बी ते डी आपस च 90 है, पर आप तो वड्डी चीज लिखांगे। वड्डी चीज की कह रही है सारे एंगल आपस दे विच इक्वल है, किन्ने डिग्री दे बेटा 90 डिग्री दे। तो इत्थे अपने कोल की आ गया इक्वल, इत्थे अपने कोल की आ गया इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, किन्ने डिग्री दे इत्थे लिख देने 90 डिग्री, इत्थे भी की लिख देने बेटा 90 डिग्री। सारे एंगल किन्ने डिग्री दे हुंदे आ 90 डिग्री दे। ओके तो सारे एंगल भी की हो गए बेटा इत्थे आपस च इक्वल। उस तो बाद की पढ़िया सी आपां, उस तो बाद पढ़िया सी आपां एंगल ए प्लस एंगल बी 180, एंगल बी प्लस सी एंगल 180, एंगल सी प्लस एंगल डी 180 ते लास्ट एंगल डी प्लस एंगल ए भी कितना हुंदा बेटा 180। मतलब सम ऑफ एडजेसेंट एंगल दैट इज अगेन इक्वल टू 180। सारे में 180 आ रहा है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना हुंदा बेटा 180 हुंदा। ओके एडजेसेंट एंगल किहड़े हुंदे आ जिन्हां दी दो एक साइड आपस दे विच की हुंदी है कॉमन हुंदी है। सो ए प्लस बी 180, बी प्लस सी 180, सी प्लस डी 180 एंड डी प्लस ए 180। ओके तो बेटा की आ गया अपने को एडजेसेंट एंगल का सम कितना आ गया बेटा 180। एडजेसेंट एंगल किहड़े हुंदे आ जिन्हां दे विच साइड की हुंदी है कॉमन हुंदी है। उस तो बाद आपां की पढ़िया सीगा, उस तो बाद पढ़िया सी आपां जिहड़े डायगोनल है आपस की हुंदे आ इक्वल हुंदे आ ते बाइसैक्ट करदे आ किन्ने डिग्री ते 90 डिग्री ते नहीं करते, ठीक है। रोम्बस दे ते स्केयर दे करदे आ, पैरेललोग्राम दे ते रेक्टेंगल दे आपस दे विच 90 डिग्री ते बाइसैक्ट नहीं करते, पर आपस च की हुंदे आ इक्वल हुंदे आ। मतलब ए सी का दे इक्वल हुंदा बेटा बी डी दे अंदर। तो आपां इत्थे की लिखांगे डायगोनल्स आर इक्वल। ओके सो डायगोनल आपस दे विच की हुंदे आ बेटा इक्वल हुंदे आ। तो की प्रॉपर्टी आ गई रेक्टेंगल च, पहला ओपोजिट साइड इक्वल, ओपोजिट एंगल
ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ all angle equal to 90 degree। sum of adjacent angle ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ 180, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵਿਦ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿਰਫ ਟੇਬਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ opposite side equal, all angle equal to 90 degree, sum of adjacent angle 180 degree and diagonals are also equal। clear है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आ गया अपने को ट्रेपीजियम। हुण आ गई ट्रेपीजियम दी बारी। ए बी सी ते डी, इहदे विच की पढ़िया सी आपां बेटा, इहदे विच आपां पढ़िया सीगा one pair of sides are parallel, one pair of sides are parallel and other is non parallel। मतलब ए बी कहंदे पैरेलल है सी डी दे, आपां पढ़िया सी ए बी सी डी दे पैरेलल है एंड ए डी नॉट पैरेलल टू बी सी। एक पेयर तो बेटा पैरेलल है, दूजा पेयर पैरेलल नहीं है, कोई भी साइड आपस दे विच इक्वल नहीं है, ना ए बी इक्वल टू सी डी है ना ए डी इक्वल टू बी सी है। तो बेटा आप इत्थे भी क्रॉस लगावांगे, इत्थे भी की लगावांगे क्रॉस लगावांगे। हो गया, कोई भी एंगल आपस दे विच इक्वल नहीं है, इत्थे भी की आ गया बेटा क्रॉस आ गया। ऑल एंगल इक्वल नहीं, ये भी की आ गया बेटा क्रॉस आ गया। मोस्टली इहदे विच की है क्रॉस है। उस तो बाद जिहड़े एडजसेंट एंगल है ए ते डी, एडजसेंट एंगल किहड़े बेटा इहदे विच ए प्लस डी 180 होएगा ते एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होएगा बेटा बी प्लस सी कितना होएगा बेटा 180। ए ते डी 180 है, बी ते बेटा सी अपने कोल की है 180 है। ओके, तो इत्थे आपां कितना लिखांगे 180, कितना आ गया बेटा 180। एक ही प्रॉपर्टी आई है देखो, ठीक है। पहला ओपोजिट साइड, ये भी कुछ नहीं है, ऑल ए भी क्रॉस है, ओपोजिट एंगल ए भी क्रॉस, ऑल एंगल इक्वल ए भी क्रॉस, एडजेसेंट एंगल कितना आ गया बेटा 180 आ गया, ठीक है। कुछ शुक्र कुछ तो आया। लास्ट विच आपां की पढ़िया सीगा जिहड़े डायगनल है AC एंड BD दे आर नॉट इक्वल, आपां ये भी पढ़िया सी AC BD दे इक्वल नहीं हुंदा, ठीक है। तो इत्थे भी आपां की लिखांगे बेटा नॉट इक्वल, इत्थे भी की आ गया बेटा अपने को नॉट इक्वल आ गया। मैं दोबारा रिवाइज करदा बेटा, ट्रेपीजियम की हुंदा है, ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर इज पैरेलल एंड अदर पेयर इज नॉन पैरेलल। एक पेयर तो पैरेलल हुंदा है, दूजा की हुंदा बेटा नॉन पैरेलल हुंदा है, जिंदे विच कोई भी साइड आपस दे विच इक्वल नहीं हुंदी, सारे साइड आपस दे विच इक्वल नहीं हुंदे, कोई भी एंगल आपस दे विच इक्वल नहीं हुंदा, कोई भी एंगल आपस दे विच इक्वल, दोबारा फिर आ गया वही चीज। एडजेसेंट एंगल का सम कितना आ गया बेटा 180, ते लास्ट विच जिहड़े डायगनल है वो आपस दे विच इक्वल नहीं हुंदे। ओके, लास्ट आ गया अपने को ट्रेपीजियम। केड़ा ट्रेपीजियम? आइसोस्केलस। केड़ी शेप है बेटा? आइसोस्केलस। सो आइसोस्केलस दे विच आपां की पढ़िया सी, हुंदा ते भी ट्रेपीजियम है, ठीक है, ट्रेपीजियम दे वांगू ही है, बट थोड़ा जिहा अपडेटेड वर्जन आ जाएगा। अपडेटेड वर्जन इहदे च की हुंदा बेटा, पहला तां AB पैरेलल टू CD, उस तो बाद की पढ़िया सी जिहड़ी नॉन पैरेलल साइड है दे आर इक्वल, आपां पढ़िया सीगा नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। जिहड़ियां साइडां नॉन पैरेलल हुंदियां, नॉन पैरेलल कौन है? AD एंड BC, दे आर इक्वल। ते इत्थे आपां की लिखांगे नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। इत्थे दसना पेगा, स्पैशल मैंशन करना पेगा, जिहड़ी नॉन पैरेलल साइड है वो की होणगियां बेटा इक्वल होणगियां। किहड़ियां साइडां? ओपोजिट है, AD दे ओपोजिट है ना, तो ये अपने कोल की हो गया बेटा ओपोजिट साइड किहड़ियां इक्वल है? नॉन पैरेलल। वैसे तो ये भी ओपोजिट है एक दूजे दे, पर ये आपस दे विच इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आपां इत्थे स्पैशल मैंशन करके लिखांगे नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड का सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। इत्थे की आ गया बेटा? क्रॉस आ गया, इत्थे क्रॉस आ गया। देखो इहदे च की पढ़िया आपां, आइसोस्केलस ट्रेपीजियम की हुंदा बेटा? ए ट्रेपीजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल साइड्स आर नॉट इक्वल। जिहड़ियां तां नॉन पैरेलल है वो तो बराबर है, जिहड़ियां पैरेलल है वो आपस दे विच इक्वल नहीं है। ओके, सो आपां इत्थे स्पैशल मैंशन करता
नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ऑल ते आपां की करता क्रॉस, ओपोजिट एंगल इत्थे इक्वल नहीं हुंदे, ऑल एंगल आपस दे विच इक्वल नहीं हुंदे, बाकी इत्थे सेम है। की सेम है? एंगल ए प्लस एंगल डी 180, एंगल बी प्लस एंगल सी भी कितना आ गया बेटा 180। तो इत्थे कितना आ गया 180 आ गया। तो लास्ट दे विच की आ गया बेटा AC नॉट इक्वल टू BD। तो डायगनल दे विच की आ गया बेटा नॉट इक्वल आ गया। ओके, डायगनल दे विच भी की आ गया बेटा नॉट इक्वल आ गया। ओके बेटा, ध्यान नाल हरेक चीज नूं समझ के प्रॉपर्टी नूं रिवाइज करके, जिवें मैं बार-बार डायग्राम बना के हरेक चीज नूं रिवाइज कर रहा, उस तरीके नाल समझो। की हुंदा है बेटा, पैरेललोग्राम दियां ओपोजिट साइड इक्वल हुंदियां, ओपोजिट एंगल इक्वल हुंदे आ, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना हुंदा 180 ते डायगनल आपस दे विच इक्वल नहीं हुंदे। यही सी रोम्बस दे विच की है बेटा, सारियां साइड इक्वल है बट ओपोजिट एंगल इक्वल है, सम ऑफ एडजेसेंट कितना 180 डिग्री ते डायगनल बेटा इक्वल नहीं हुंदे। बाइसेक्ट करदे आ 90 डिग्री ते पर इक्वल नहीं हुंदे। स्केयर च की पढ़िया बेटा, सारियां साइड इक्वल है, सारे एंगल इक्वल है, किन्ने डिग्री दे सारे एंगल 90 डिग्री। स्पैशल मैंशन किया इत्थे मैं, किन्ने डिग्री दे हुंदे सारे बेटा 90 डिग्री दे। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल दैट इज इक्वल टू 180 ते बेटा डायगनल आपस दे विच की हुंदे इक्वल। दो डायगनल हुंदे ना क्वाड्रीलेटरल दे विच ते दोवें आपस दे विच की है बेटा इक्वल है। उस तो बाद पढ़िया आपां रैक्टेंगल दे बारे। रैक्टेंगल की हुंदा बेटा, ओपोजिट साइड इक्वल हुंदियां। रैक्टेंगल विच की हुंदा बेटा, ओपोजिट साइड इक्वल, सारियां साइड आपस दे विच इक्वल नहीं हुंदियां। ओपोजिट एंगल वैसे तो इक्वल भी लिख सकते हैं पर आपां की वड्डी चीज नूं मैंशन कीता, सारे एंगल इक्वल है, किन्ने डिग्री दे बेटा 90 डिग्री दे। एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना हुंदा बेटा 180 हुंदा। लास्ट विच जिहड़े डायगनल है वो की हुंदे बेटा इक्वल हुंदे। डायगनल की हुंदे आपस दे विच इक्वल हुंदे। नैक्सट आ गया ट्रैपीजियम। ट्रैपीजियम ओपोजिट भी इक्वल नहीं है, ऑल भी इक्वल नहीं है। जे तां छोटी नहीं इक्वल तो वड्डी कित्थों होएगी। ओके, ये दोवां ते की आ गया क्रॉस आ गया। ओपोजिट एंगल भी इक्वल नहीं हुंदे, ऑल एंगल भी इक्वल नहीं हुंदे। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना हुंदा 180, पर किहड़े-किहड़े एंगल ए ते डी वाला, बी ते सी वाला, जिहड़े नॉन पैरेलल साइड नाल बने आ। ਜਿਹੜੇ एंगल नॉन पैरेलल साइड नाल बने आ ਉਹੀ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ 180 ਆ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ पैरेलल साइड्स ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ ਉਹ 180 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ डायगोनल ਹੈ ਉਹ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਆਈਸੋਸਕੇਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਆਈਸੋਸਕੇਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ਜਿਹੜੀਆਂ पैरेलल ਹੈ दे आर नॉट इक्वल। ऑल साइड ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ओपोजिट एंगल क्रॉस, ऑल एंगल क्रॉस, एडजेसेंट एंगल 180। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ एडजेसेंट एंगल, ਜਿਹੜੇ नॉन पैरेलल साइड्स ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ नॉन पैरेलल साइड्स ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ 180। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 11.6 ਖਤਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 11.7 ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ।